Hey, welcome back everybody in this jovial psychology class. So this is about some very important concept from social psychology. आज आप यहाँ पर सोशल साइकोलॉजी के कुछ मेन कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं. So if you want to learn more about psychology concepts, so you can join me on my jovial psychology telegram channel, link given in the description box. So today I will talk you basically about what is the psychology and the fundamental attribution error and the self-serving bias and cultural and attributional biases, attitude formation changes and foot in the door phenomena. So these are some important concepts you can understand it. So what is social psychology? So sometimes it happens that we have a lot of questions in our mind. Questions like why are some people such great leaders? क्यों कुछ लोग दुनिया में इतने महान होते हैं? What shapes our attitudes? हमारे एटीट्यूड कैसे चेंज होते हैं? How does prejudice develop and changes also? कैसे हम prejudice को डेवलप करते हैं एंड कैसे चेंज भी हो जाते हैं? Why do you perform better in your culture? जब आप अपने कल्चर में अपनी सोसाइटी में होते हैं आप क्यों ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं? ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं. सो इफ़ यू वांट टू नो द आंसर्स ऑफ क्वेश्चंस लाइक दिस, सो यू नीड टू लर्न अबाउट सोशल साइकोलॉजी. आपको उस टाइम पे सोशल साइकोलॉजी को पढ़ना होगा बिकॉज सोशल साइकोलॉजी टेल्स यू एवरीथिंग दैट हाउ यू बिहेव इन योर सोसाइटी एंड हाउ यू अफेक्ट फ्रॉम योर सोसाइटी. So it's very important to understand that social psychology is really very interesting because it connect your life from psychology. So let's start now. We understand that what is the psychology, basically social psychology. So there is something about social psychology by Gordon Allport. So social psychology uses scientific method to understand and explain how the thoughts, feelings and behavior of individuals are influenced by the actual imagined or implied the presence of other human things. हम कैसे अपने थॉट्स को बिहेवियर को चेंज करते हैं, कैसे हम फीलिंग्स को फील करते हैं, कैसे हम सोसाइटी में दूसरों की वजह से इन्फ्लुएंस होते हैं. सो ये सब चीज़ें हैं जो हम सोशल साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं. सो वी कैन से ऑल्सो दैट social psychology is about understanding how each person's individual behavior is influenced by the social environment in which that behavior takes place. यानी हमको पता चलता है कि कैसे कोई पर्सन, कैसे कोई इंडिविजुअल अपनी सोसाइटी में जो लोग होते हैं, जो एनवायरनमेंट होता है उसके वजह से वो इन्फ्लुएंस होते हैं. सो इन सोशल साइकोलॉजी वी स्टडी अबाउट ग्रुप बिहेवियर, अबाउट सोशल परसेप्शन, अबाउट लीडरशिप, नॉन वर्बल बिहेवियर, कन्फर्मिटी, एग्रेशन, प्रेजुडिस. तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम स्टडी करते हैं. सो दिस इज़ वेरी इजी एंड नाउ द मेन इम्पॉर्टेंट की पॉइंट, main concept are in front of your eyes. That is first, fundamental attribution error. Fundamental attribution error is very easy and very interesting concept. How? Try to understand by your own self. हम लोग क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम दूसरों के बिहेवियर को किसी न किसी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं. इवन हम किसी को जानते हैं लेकिन उससे कभी मिले नहीं हैं, हम तब भी उसका बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं, यार वो ऐसा है, वो ऐसा है ना. हम लोगों के बारे में कुछ न कुछ ओपिनियन क्रिएट करते हैं और वो हारते हैं लाइफ में, जीतते हैं, कैसे बिहेव करते हैं उसके बारे में कुछ न कुछ हम कॉज प्रेजेंट करते हैं या फिर हम सोसाइटी में लोगों को ब्लेम करते हैं. सो सिंपल पॉइंट इज दैट कि हम यहाँ पर फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर करते हैं. सो इफ़ यू वांट टू नो दैट व्हाट इज द बेसिकली फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, so for that we need to understand about dispositional factor and situational factor. These are two important key terms. So what is the dispositional factor? Dispositional factors, also known as internal factors, mean to say that from individual, है ना, किसी individual characteristic से होते हैं. So
डिस्पोजिशनल फैक्टर्स आर इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इन्फ्लुएंस बिहेवियर एंड एक्शंस इन अ पर्सन, है ना। हम जब डिस्पोजिशनल फैक्टर की बात करते हैं तो बात करते हैं पर्टिकुलर किसी पर्सन के करेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उसके मोटिवेशंस के बारे में, उसके पर्सनैलिटी ट्रेट के बारे में। एंड वी कैन से कि ये जो डिस्पोजिशनल फैक्टर्स होते हैं ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में है और उसे हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। बट सेकेंड इज अबाउट सिचुएशनल फैक्टर्स। सो एज द नेम सजेस्ट, सिचुएशन दैट इज द थिंग दैट हैपन्स इन समवन लाइफ, है ना। किसी की लाइफ में क्या सिचुएशन है आपको दिखाई नहीं देता है। सो सिचुएशनल फैक्टर्स रिफर्स टू सोशल इन्फ्लुएंसेस। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय योर सेल्फ दैट आपकी सोसाइटी में आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। ये आसानी से किसी को दूसरे को नहीं दिखता है। सो we can say the outside elements that can influence someone's behavior। सिचुएशनल फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि आउटसाइडली होते हैं और किसी पर्सन के बिहेव को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। सो नाउ द पॉइंट इज दैट कि जब हम किसी के बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं, बिहेवियर को डिस्क्राइब करते हैं, सो एट दैट टाइम अगर हम उसके डिस्पोजिशनल फैक्टर्स को ओवर एम्फेसाइज करते हैं एंड अंडर एस्टिमेट करते हैं सिचुएशनल फैक्टर्स को, तो उसे कहा जाता है फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई एक हेल्दी पर्सन आता है और वो कहता है साहब मेरे को ना 100 रुपये दे दो, मेरे को नीड है। तो आप उसे क्या बोलते हो, अरे जाओ यार कुछ काम धाम करो, क्यों इस तरह से पैसे मांगते हो, तुमको शर्म नहीं आती है, आपने से बोल दिया। सो दिस इज दैट कि आपने जो देखा उसके बेस पे आपने उसके बिहेवियर के बारे में कुछ बोल दिया, उससे कुछ कह दिया, मतलब आपने उसके डिस्पोजिशनल फैक्टर को ओवर एम्फेसाइज किया। बट उसकी लाइफ में रियलिटी में प्रॉब्लम क्या रही होगी, यानी सिचुएशन क्या रही होगी, उसको हमने अंडर एस्टिमेट कर दिया। सो दिस इज द फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर कि जब हम किसी के बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं तो वहाँ पर जब हम उसके डिस्पोजिशनल फैक्टर्स को ओवर एम्फेसाइज कर देते हैं और अंडर एस्टिमेट कर देते हैं सिचुएशनल फैक्टर्स को, सो दैट इज द फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। सो आई थिंक अब आप इसको समझ गए होंगे। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट व्हाट इज द कॉज ऑफ फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। इसका कारण क्या है। सो इसको समझने के लिए हमें दो कॉन्सेप्ट समझने हैं। द फर्स्ट इज जस्ट वर्ल्ड फेनोमेना एंड सेकंड इज सैलिएंसी बायस। जस्ट वर्ल्ड फेनोमेना एक कॉन्सेप्ट है जिसमें ये कहा जाता है कि लोग ये समझते हैं कि ये जो दुनिया होती है ये जस्ट एंड फेयर होती है, सब कुछ बेहतरीन होता है और लोग वही पाते हैं जिसके वो लायक होते हैं, जिसको डिजर्व करते हैं उनको वही मिलता है ना। सो सीधी सी बात है, अगर मेरे सामने कोई बैगर आया है तो भाई मुझे दिख रहा है कि इफ़ यू आर एबल टू डू एनी वर्क, आप किसी काम को कर सकते हो तो काम करो ना, जब उसके लिए डिजर्व करते हैं आप कर सकते हो तो करो ना, है ना। तो मतलब क्या है, जस्ट वर्ल्ड फेनोमेना कहता है कि मोस्ट ऑफ पीपुल हैव अ नीड टू बिलीव दैट द वर्ल्ड इज जस्ट एंड फेयर, और इसकी वजह से लोग सोचते हैं कि आपको वही मिलेगा जो आप डिजर्व करते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि बेसिकली हम लोगों के डिस्पोजिशनल फैक्टर को ही ओवर एम्फेसाइज करते हैं और हम सिचुएशनल फैक्टर्स को नहीं देखना चाहते हैं। सो नेक्स्ट इज सैलिएंसी बायस। इसमें क्या होता है, सिचुएशनल फैक्टर्स आर लेस सैलिएंट और नोटिसेबल देन डिस्पोजिशनल फैक्टर्स। मैंने पहले ही कहा था, हमें जो सामने दिखता है हम उस पर बिलीव करना चाहते हैं। सो सैलिएंसी बायस इज अ कॉन्सेप्ट दैट सेज दैट जो सिचुएशनल फैक्टर्स होते हैं वो लेस नोटिसेबल होते हैं क्योंकि वो हमको सामने से समझ में नहीं आते हैं, और डिस्पोजिशनल फैक्टर्स सामने हमको ज़्यादा से नोटिस होते हैं। सो पॉइंट इज़ दैट कि जस्ट वर्ल्ड फेनोमेना एंड सैलिएंसी बायस ये दो चीज़ें हैं जो कि बताती हैं कि फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर क्यों होता है। सो आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। नाउ नेक्स्ट इज सेल्फ सर्विंग बायस। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप पहले भी कई बार सुनेंगे। लोगों की हैबिट होती है कि वो जो खुद करते हैं, खुद जो अचीवमेंट होती है उसकी क्रेडिट खुद ही लेना चाहते हैं, और अगर कुछ फेल हो जाते हैं, कहीं पे फेल्योर होता है तो वो दूसरों पर आरोपित करते हैं। सो पॉइंट इज दैट मोस्ट पीपल टेक क्रेडिट फॉर देयर सक्सेसेस while at the same time attributing their failures to external situations beyond their control। यानी जहाँ पर वो फेल हो जाते हैं, जो चीज़ कंट्रोल में नहीं होती हैं उसको दूसरों पर एट्रीब्यूट कर देते हैं। सो दिस इज द सेल्फ सर्विंग बायस। एंड सेल्फ सर्विंग बायस होता क्यों है? सो दिस इज द कॉज दैट सभी लोगों के मन में एक चाहत होती है कि उनका सेल्फ स्टीम अच्छा हो, है ना। सभी अपना फेस सेव करना चाहते हैं, सभी सेल्फ स्टीम को अच्छा बनाए रखना चाहते हैं। सो इसके चक्कर में क्या होता है कि लोग सेल्फ सर्विंग बायस करते हैं, यानी खुद कुछ किया है तो उसको
खुद ही क्रेडिट देंगे और कुछ नहीं कर पाया है तो दूसरों पर उसको एट्रीब्यूट कर देते हैं। सो इंडिविजुअल्स आर मोर अवेयर ऑफ द सिचुएशनल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर। सो ऐसा भी बताया गया है कि जो लोग होते हैं, इंडिविजुअल्स लोग होते हैं, वो सिचुएशनल फैक्टर्स के बारे में अवेयर होते हैं जो कि उनके बिहेवियर को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। सो बेसिकली जब भी कोई ऐसा काम होता है जहाँ पर खुद ही कुछ किया होता है तो मतलब अचीवमेंट हो जाती है, सफल हो जाते हैं, तो उसकी क्रेडिट खुद ही वो लेते हैं। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, डेली लाइफ में होता है। जैसे मान लीजिए कोई आपका फ्रेंड है और उसने थोड़ा सा कुछ अचीव कर लिया तो वो सब जगह बताता है कि देखो मैंने ये किया, मैंने ये किया, है ना। लेकिन जब उसके फैमिली मेम्बर्स कुछ कर रहे हैं तो वो चुपचाप रहता है, उतना कुछ नहीं बोलता है। सो दिस इज अबाउट सेल्फ सर्विंग बायस। Now next concept is about cultural and attribution biases. So this is very important. अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आता है कि फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर कहाँ पर ज़्यादा होता है, यानी कलेक्टिविस्ट कल्चर में या इंडिविजुअलिस्ट कल्चर में। सो सिंपल पॉइंट इज दैट जहाँ पे इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर होता है वहाँ पर फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर बहुत ज़्यादा होता है। जहाँ पे कलेक्टिविस्ट कल्चर होता है वहाँ पर फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर कम होता है, क्योंकि जो इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर होता है वहाँ पर इंडिविजुअली लोग फोकस करते हैं और डिस्पोजिशनल फैक्टर को हमेशा ओवर एम्फेसाइज करते हैं और लेस एम्फेसाइज करते हैं सिचुएशनल फैक्टर को, तो वहाँ पर फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर ज़्यादा होता है। एंड कलेक्टिविस्ट में क्या होता है कि लोग सिचुएशनल फैक्टर्स को ओवर एम्फेसाइज करते हैं, सो वहाँ पर फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर कम होता है। सो दिस टू द पॉइंट। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट एटीट्यूड फॉर्मेशन एंड चेंज। हमारे एटीट्यूड कैसे बनते हैं, कैसे चेंज होते हैं, इसके बारे में बताया गया है। सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट व्हाट इज एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या होता है, हाउ वी थिंक बिहेव, है ना, हम कैसे सोचते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी पर्सन के बारे में कैसे इवेल्यूट करते हैं, दैट इज अवर एटीट्यूड, है ना। सभी का अलग अलग होता है। सो हियर इज टू इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज सेंट्रल रूट टू परसुएशन एंड सेकेंड इज पेरिफेरल रूट टू परसुएशन। सेंट्रल रूट टू परसुएशन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब हम फोकस करते हैं फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स पे और एनालिसिस करते हैं डीपली किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, तो वो होता है सेंट्रल रूट टू परसुएशन। जैसे मान लीजिए आप कार लेना चाहते हैं तो कार के बारे में आपने डीपली इन्फॉर्मेशन को गेन किया, कार का एवरेज क्या है, कार का इंजन कैपेसिटी क्या है, कार में क्या क्वालिटी है, दैट इज द सेंट्रल रूट टू परसुएशन। बट सेकेंड इज पेरिफेरल, मतलब सरफेस लेवल पे, जहाँ पे लोग इमोशनल अपील्स को फोकस करते हैं एंड वो डीपली किसी भी चीज़ में नहीं जाते हैं, वो होता है पेरिफेरल रूट टू परसुएशन। मतलब कि अगर आप कार लेना चाहते हैं तो आपने केवल ये देखा कि कार को किस मॉडल ने प्रेजेंट किया है, मतलब कि अमिताभ बच्चन ने, शाहरुख खान ने या किसी और ने, या फिर कार का कलर कैसा है, वाह इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है, और जाके आप कार्स परचेज कर लेते हैं। सो दिस इज द पेरिफेरल रूट टू परसुएशन। सो आपने देखा होगा कि इस कॉन्सेप्ट का यूज बेसिकली मार्केटिंग कंपनीज करती हैं, बिकॉज उनको कस्टमर को अट्रैक्ट करना होता है, तो वो अपनी चीज़ों को दोनों तरीके से प्रेजेंट करते हैं। मतलब कि किसी मॉडल से प्रेजेंट करवाएंगे चीज़ों को, अच्छा सा कलर, अच्छा सा डिजाइन, एंड वहाँ पे चीज़ों के फीचर्स के बारे में बताते हैं। तो लोग जिस तरह की पर्सनैलिटी के होते हैं, मतलब कुछ लोग होते हैं जो कि पेरिफेरल रूट परसुएशन को फॉलो करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सेंट्रल रूट परसुएशन को फॉलो करते हैं, और इसके थ्रू कंपनी क्या करती है, लोगों को टारगेट करती हैं और अपने सामान को बेचती हैं। जैसे आपने सोचा होगा, आप जाते हैं मॉल में जब जाते हैं परचेसिंग करने के लिए, तो आप जानते हैं ना कि कई बार क्या होता है कि वी परचेज लॉट ऑफ थिंग्स दैट इज नॉट नेसेसरी। वाई? बिकॉज वो लोग पेरिफेरल रूट परसुएशन का इतना ज़्यादा यूज करते हैं कि आपको वो परस्यूड कर लेते हैं अपनी चीज़ों को परचेज करवाने के लिए। सो दिस इज अबाउट दैट कि हम कैसे अपने थॉट्स को चेंज कर लेते हैं और कैसे हम किसी चीज़ को परचेज कर लेते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट फुट इन द डोर फेनोमेना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सीधी सी बात है कि हम सोसाइटी में रहते हैं और चाहते हैं कि लोग हमारी बात को मान जाएं। सो ऑलवेज कीप इन माइंड कि अगर आप जब लोगों से पहले छोटी रिक्वेस्ट करते हैं और लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ज़्यादा चांस हो जाते हैं कि बाद में वो आपकी बड़ी रिक्वेस्ट को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑन योर दिस इमेज दैट कि कोई लेडी है, वो अदर लेडी से कहते हैं कि क्या मेरी हेल्प करोगे, मुझे कुछ सामान लेना है केक बनाने के लिए। वो कहती है ओके, एंड 10 मिनट के बाद फिर वो लेडीज़ कहती है अच्छा क्या आप मेरे केक बनाने में हेल्प करेंगे। तो
वो कहती है ठीक है, ओके कर दूंगी। लेकिन अगर ये लेडी डायरेक्टली से ये बोलती कि आप मुझे ना केक बनवाने में मेरी हेल्प कर दो, तो शायद वो ना करती। सो फुट इन द डोर फेनोमेना इज अ कंप्लायंस टेक्निक दैट एज्यूम्स एग्रीइंग टू अ स्मॉल रिक्वेस्ट इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ एग्रीइंग टू अ सेकंड लार्जर रिक्वेस्ट। जब लोग किसी छोटी रिक्वेस्ट के लिए एग्री हो जाते हैं तो चांस इंक्रीज हो जाते हैं कि वो आपकी सेकंड लार्ज रिक्वेस्ट को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। सो दिस इज द फुट इन द डोर फेनोमेना। जस्ट बेसिक एग्जांपल फ्रॉम योर डेली लाइफ। जैसे जब आप किसी शॉप पर जाते हैं कपड़े लेने के लिए, सो एट दैट टाइम शॉपकीपर कहता है कि सर आप देख लीजिए, मैं आपको मतलब कपड़े दिखा देता हूँ और पैसे नहीं ले रहा हूँ कपड़े दिखाने के। तो आप क्या करते हैं, देखने का प्रयास करते हैं एंड इसके बाद चांस होता है कि आप परचेस भी कर लेंगे। सो देयर आर वेरी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स भी और हो सकते हैं। सो फुट इन द डोर फेनोमेना क्या है, पहले छोटी रिक्वेस्ट, बाद में बड़ी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के चांस बढ़ जाएंगे। सो आई थिंक दिस इज द शॉर्ट एंड दिस इज द रैपिड वीडियो अबाउट some social psychology concept. So you can watch more videos to the point to the concept in playlist. मैंने playlist को क्रिएट किया है तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। So thanks for watching this video. Meet you in next video.